आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं। बस पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लें, ध्यान देंगे बॉडी पर। बॉडी बिल्कुल शांत, मन पूरा शांत। सांसों को धीरे धीरे लंबा करें। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। डीप ब्रेथ इनहेल, डीप ब्रेथ एक्सहेल। और इसी गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण 3 बार। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए अभी हम माइंडफुलनेस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। शुरू हम करेंगे हम वीडियो देखेंगे। मोबाइल पर है या लैपटॉप पर है तो बस पास में आ जाना। मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, 4 मिनट्स की है, वो माइंडफुलनेस के ऊपर है। वो अभी हम देखते हैं। Everyday mindfulness. What is mindfulness? Often when people think about mindfulness, they imagine someone sitting on a cushion alone in a room with their eyes closed. Sometimes that is what mindfulness practice looks like. And sitting with your eyes closed in this way has great benefits. But mindfulness is also so much more. Mindfulness is a way to approach everyday life that makes living more enjoyable and less stressful. You can apply mindfulness to everything you do, whether you are eating, walking, or sitting in class. Mindfulness is a choice that you can make at any moment. Mindfulness can help you better understand how you feel and what you are experiencing. It's about being aware of the present moment instead of replaying the past or worrying about the future. Mindful awareness means being aware with kindness. It's about being engaged in everyday life, choosing to be nice to yourself and others in the present moment, and bringing an open awareness to all moments, whether those moments are pleasant, neutral, or maybe even unpleasant. Bringing to that awareness some curiosity and kindness instead of judgment and criticism. You may be surprised at what you learn if you are curious and kind. This does not mean that you need to be meditating. You just need to be paying attention on purpose with a little friendliness. This can help you with stress or anxiety or even sadness. It helps you focus on what is happening right now, because worrying about the future or the past all the time can be exhausting. Practicing paying attention in a kind way to little things can help train your mind so you can develop more ease across your life. Anything can be leveled up with mindfulness. Here are some examples of ways you can be mindful in everyday life. Right now,
You might be sitting in a chair watching this video on your phone. How heavy does your phone feel in your hand? What parts of your hand is the phone touching? Is your phone hot, warm, or maybe cool? Are you sitting down? What parts of your body are being supported by the chair? If you are standing, can you feel which parts of your feet are connected to the ground? Or where you are placing the weight of your body on your feet? This is all mindfulness. Or maybe, when you're talking with someone, instead of listening to them so that you can give them a response or to answer them, listen with the goal of understanding them better. This is a little change that can make a big difference in a conversation. The trick is not to automatically react to what you're paying attention to. Just notice what body sensations and emotions come up. And notice your reactions or judgments, because there will be judgment. Just try not to judge yourself for how judgmental you might be. There is no right or wrong, just noticing what's happening in the moment. This can be noticing what's going on around you or inside of you. Let any and all things that you notice be there. You can practice this type of mindfulness anytime, anywhere, and under any circumstance. Simply be aware of what's happening in that moment. Like this moment. What are you noticing right now? ये स्क्रीन पर आ रहा होगा। माइंडफुलनेस के बारे में हम आज बात करें तो क्या हमने देखा वीडियो के बारे में? व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग अलोन इन अ रूम विद आईज क्लोज्ड, इट इज मच मोर देन दैट। मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है कि हम करने बैठे हैं, हमें अच्छा लगा और बस काम हो गया। ये माइंडफुलनेस हमें पूरी लाइफ में सिस्टम हमारा जो हमारी डिसीजन मेकिंग है काफी क्लियर कर देती है। और वैसे ही लाइफ को बड़ा इट्स अ वे टू मेक एवरीडे लाइफ मोर एंजॉयबल, लेस स्ट्रेसफुल, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि क्या कंक्लूजन्स के बारे में, हम बस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। क्या एप्लीकेशन, कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको? जैसे माइंडफुलनेस कैन बी अप्लाइड टू एवरीथिंग you do, whether you are eating, walking or sitting in class। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे वीडियो में भी दिखाया था कि पढ़ रहे हो, चल रहे हो, बैठे हैं, कहीं पर भी हम अटेंशन लेकर जा सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हमें माइंड बता रहा है कि अपने आप जा रही है अटेंशन। हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि हम कहाँ अटेंशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां हम अटेंशन नहीं करना चाहते वहां हमारा ध्यान जा रहा है बार बार। तो पॉइंट यही है कि जहां हम चाहें, जहां हमारी इंटेंशन हो फोकस करने की। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस एंड अवेयरनेस। माइंडफुलनेस इज ए चॉइस यू कैन मेक एट एनी मोमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी ने बांधा हुआ है कि हम कुछ और सोच नहीं सकते, कि अगर मेरा मन में कोई नेगेटिव या कोई अनवांटेड ख्याल आ रहा है तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं कुछ और सोच नहीं सकता, मैं उस मोमेंट पर कहीं और अपना फोकस लेके जा नहीं सकता। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया फोकस के लिए, अटेंशन के लिए ढूंढ सकते हैं और उससे हमें करंट अंडरस्टैंडिंग मोमेंट की ज़्यादा अच्छे से पता चलती है जब हम बैलेंस माइंड के साथ देखते हैं। जैसे इट हेल्प्स यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ यू फील एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, इतनी सारी सेंसेशन होती हैं। जैसे हम योग निद्रा में नोटिस करते हैं कि सेंसेशन होती है, हम नोटिस ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही बाहर जा ही जा रहा है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है फोकस करने के लिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट मोमेंट एंड काइंडनेस। तो इसमें लिखा है इट्स अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट रिप्लेइंग द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। अगर हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोचने लग जाएंगे या इमेजिन करने लग जाएंगे
तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, करूं कि ना करूं। तो वो हमेशा क्रॉस माइंडेड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वैसे ही माइंडफुल माइंडफुल अवेयरनेस मीन्स बीइंग अवेयर विद काइंडनेस, नॉट जजमेंट और क्रिटिसिज्म। अगर हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें उसके बारे में कुछ बताना ही बताना है, हम उसको काइंडनेस से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें अपना रिजल्ट निकाल कर देना ही देना है। ये एक और पॉइंट में बड़ा अच्छा क्लियर होगा आगे। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, जैसे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स तो इससे सबसे पहले क्लियर है ही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, जितनी भी ये ओवर थिंकिंग, टेंशन, ये सारी चीजें एकदम काबू में आने लग जाती हैं, रिलैक्स होने लग जाती है बॉडी। माइंड को हम अपने हिसाब से फोकस करने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स अस फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, विच इज लेस एग्जॉस्टिंग देन वरिंग अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट। तो वही बात कि अगर हम फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे तो बड़ा एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम। क्या क्या सोचेंगे जो हुआ ही नहीं है या जो हो चुका है उसके बारे में सोच के बार बार क्या करना। हम प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दे सकते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीडे माइंडफुलनेस। जैसे वीडियो में बताया था, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ चेयर, बी अवेयर ऑफ बॉडी पोजिशन, टेम्परेचर ऑफ द स्किन, डिफरेंट साउंड्स। मतलब कितना कुछ हम फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं फोकस करने को, कि हमें कुछ करना थर्ड चीज या मोबाइल उठाकर देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमारा ध्यान बांटने के लिए। वैसे नेक्स्ट, व्हेन टॉकिंग टू समवन, लिसन विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम बेटर रादर देन प्रिपेयरिंग योर रिस्पॉन्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे। क्या होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई कुछ कुछ कहने लगता है, हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि इसको मैं क्या आंसर दूंगा, कि ये यहाँ पर गलत हो गया, इसको मैं यहाँ पकड़ लूंगा और इसको मैं ऐसे घुमाकर आंसर दूंगा। तो हमें ये नहीं करना, हमें रिस्पॉन्स नहीं सोचना कि हमने क्या आंसर देना है, हमने ये देखना है कि वो कहना क्या चाहता है। हम उसको बताकर जीत थोड़ी जाएंगे एकदम से कि या तू 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 ये गलत था, तूने ये गलत किया। लेकिन हम उसको पहले ही बताकर काफी चीजें मिस कर देंगे जो वो बता सकता था। तो हम कहीं ना कहीं अपना ही कैलकुलेशन करके पहले ही रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, कभी भी कन्वर्सेशन में ये नहीं सोचना कि मैं तुझे सही करता हूँ, मैं बताता हूँ तुझे सही क्या होता है। मतलब हमेशा सही होना जरूरी नहीं होता, अगले बंदे की हम हमेशा सुन सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है माइंडफुलनेस का। अगला पॉइंट देखते हैं, टिप्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, द ट्रिक इज नॉट टू ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू व्हाट you are paying attention to. Just notice body sensations and emotions as they come up. इसका मतलब है कि मुझे सपोज किसी ने गाली दी, ठीक है, तो अब मेरा ये इंस्टिंक्ट होता है कई बार ह्यूमन का कि वो वापस गाली देगा, बिना सोचे, बिना समझे, बिना इधर उधर देखे, कि हम वापस गाली दे देंगे। तो पॉइंट यहां पर ये है कि क्या जल्दी है गाली देने की, थोड़ा रुक जाओ, बाद में दे देना। पहले समझ लो कि क्या चल रहा है, क्यों दी है उसने गाली, क्या हुआ है, क्या कंटेक्स्ट है यहाँ पर, कौन है वो बंदा, आसपास कौन है। मैं गाली दूंगा तो उससे होगा क्या, मैं गाली नहीं दूंगा तो उससे होगा क्या। बस अगर हम एकदम से गाली दे देंगे तो हमने कुछ सोचे बिना ही अपना आंसर दे दिया। लेकिन अगर हम बस 2 मिनट रुक जाएंगे, गाली हम बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बाद में नहीं दे सकते। लेकिन बाद में मन ही नहीं करेगा देने का, क्योंकि हम माइंडफुलनेस से सोचेंगे। हम माइंडफुलनेस से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि फटाफट कुछ ना कुछ सोच के नतीजा निकाल लेते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस में पढ़ने के लिए एकदम से रुक जाना है कि कुछ हुआ, जरूरी नहीं है कि एकदम से रिस्पॉन्स करना है, ठहर के एकदम से रुक जाना है, समझना है कि क्या चल रहा है आसपास, कैसी सेंसेशन है, कैसी साउंड है। तो उसके हिसाब से हम ऑटोमेटिकली बढ़िया सा रिस्पॉन्स अपना तैयार कर सकते हैं। प्राणायाम करेंगे हम 5 मिनट्स के लिए, कंफर्टेबल हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कोई भी आसन, बस पीठ सीधी, आंखें जेंटली क्लोज्ड। ध्यान ले जाएं सांसों पर,
और सांसों को धीरे धीरे लंबा करें। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें और ऑब्जर्व भी रखें ब्रेथ को। कहाँ जा रहा है ब्रेथ? नाक से लेकर गर्दन के पीछे तक, गर्दन से लेकर गर्दन के बीच तक, फिर वहां से विंड पाइप ट्रैकिया से लंग्स की तरफ जाता हुआ और फिर वहां से वापस। 2 बार ऐसे ही लंबा सांस माइंडफुलनेस के साथ। ब्रेथ नॉर्मल कर दें। अभी हम कपालभाति करेंगे, 50 काउंट ही करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ। शुरू करते हैं। अगर खाना खाया होगा तो अवॉइड कर सकते हैं। बस नोटिस रखें एब्डोमेन को। हर एक्सहेल पर नेवल अंदर की तरफ पुल होगा। नोटिस करना है उस मूवमेंट को। ब्रेथ को भी नोटिस करना है, सिर्फ एक्सहेल पर ध्यान देना है। इनहेल नोटिस करेंगे कि अपने आप होगा। जैसे ही पेट बाहर आता है इनहेल अपने आप होता है। चलिए आराम से ब्रेथ रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति, 50 काउंट। शुरू करें। चलिए आराम से सभी रिलैक्स। बॉडी स्टिल कर देंगे, पीठ सीधी रखेंगे। अभी हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए कुछ करना नहीं है, बस अटेंटिव रहना है। ध्यान ले जाएं सारा नेचुरल ब्रेथ के ऊपर। चेक करें कैसी है नेचुरल ब्रेथ। अटेंटिव रहेंगे। ध्यान लेकर जाएं चेहरे पर। नोटिस करें फेस की मसल्स, आंखें, नाक, लिप्स, टीथ, टंग, जॉ, चीक्स, ईयर्स, पूरा स्कल शांत बिल्कुल। कोई भी सेंसेशन नोटिस कर सकते हैं तो करेंगे, कोई पैदा नहीं करेंगे सेंसेशन, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे मूवमेंट, बस जो है उसको देखेंगे। और हेड पूरा रिलैक्स। थोड़ा सा नीचे आए, गर्दन के बीच में ध्यान दें।
चेस्ट की तरफ ध्यान दें। उसके बाद डायाफ्राम और उसके बाद एब्डोमेन पर ध्यान दें। कोई भी सेंसेशन, कोई भी वाइब्रेशन एब्डोमेन में फील कर सकते हैं तो करें, नहीं फील कर सकते तो वो भी नोटिस करें। अभी हम फोकस को शिफ्ट की प्रैक्टिस करेंगे। फोकस शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स पर जाएंगे और वापस आएंगे। हेड पर ध्यान देंगे, फिर एब्डोमेन पर ध्यान देंगे, हेड पर ध्यान देंगे, फिर एब्डोमेन पर ध्यान देंगे। और हम जब ध्यान देंगे, एब्डोमेन से हम जंप करके भी हेड तक जा सकते हैं, ट्रेवल करके भी हेड तक जा सकते हैं। जैसा भी सूट करेगा वैसा कर सकते हैं। मैं एक एक करके बॉडी पार्ट का नाम लूंगा और हम फोकस को पूरा वाइब्रेशंस की तरफ लेकर जाएंगे। हेड, एब्डोमेन, हेड, एब्डोमेन, हेड, एब्डोमेन। कोई भी सेंसेशन अच्छी या बुरी बस नोटिस करें। हमने बस फोकस करने, कोई जजमेंट नहीं करनी। वाइब्रेशन आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। ध्यान कहीं चला जाता है तो बस वापस ले आना है। हमारा पर्पस ही ये है कि ध्यान जैसे ही पता चले कहीं गया तो वापस ले आना है। सारा ध्यान ले जाएं अब हेड के टॉप पर। हेड के ऊपर बालों को नोटिस करें। बालों के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको नोटिस करें। हेड के इमीडिएटली ऊपर हवा को नोटिस करें। और वहां से ध्यान ले आए पैरों की बैक साइड पर। नोटिस करें पैरों की बैक साइड, टेक्सचर नोटिस करें, टेम्परेचर नोटिस करें। पैर की उंगलियां बिना हिलाए नोटिस करें। अब हम फिर से ट्रेवल करेंगे फोकस के साथ पैर की बैक साइड से, ट्रेवल करते हुए हेड के टॉप पर। और फिर टॉप से ट्रेवल करते हुए पैर की बैक साइड पर। अप, डाउन, अप, डाउन। ब्रेथ भी नोटिस करें कैसी चल रही है साथ में। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। नोटिस करें फोकस पूरा ट्रेवल करता हुआ बॉडी के
नॉर्थ से साउथ तक, एक बार और, अप, डाउन। ध्यान ले आए सारा नेवल पर। अब हम इंटरनल बॉडी और बॉडी का एक्सटर्नल वाइब्रेशन को नोटिस करेंगे। नोटिस करें एब्डोमेन में जो भी वाइब्रेशन सेंसेशन नोटिस कर सकते हैं। ध्यान लेकर जाएं बॉडी से बाहर। आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। फोकस बस एक बार बॉडी के बाहर, फिर एब्डोमेन के अंदर, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। ध्यान ले आए नेचुरल ब्रेथ पर, नेचुरल रिदम ऑफ द ब्रेथ। बस देखें दूर से, जैसे खिड़की में से हम कहीं दूर देख रहे हो उस तरह से देखें ब्रेथ को। नजर घुमा लें पूरी बॉडी पर। 2 बार लंबा सांस लें और छोड़ें। और पामिंग करें, रब करेंगे हाथों को आपस में, गरम करेंगे अच्छे से और लगाएंगे बंद आंखों पर। चलिए, सही है। हमने माइंडफुलनेस की छोटी सी टेक्निक की। जैसा कि हमने समझा था कि जैसे जब हम योगासन करते हैं, मसल स्ट्रेच करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल की हेल्थ इंप्रूव होती है। वैसी माइंड है, वैसी अटेंशन है। जितना हम अटेंशन को लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही इंप्रूव होती रहेगी। मसल ही लगा के चले, अटेंशन भी एक मसल है कि जितना हम यूज करेंगे उतना बेटर होता रहेगा। जितना हम कम यूज करेंगे उतना वो लूज होकर कहीं भी आउट ऑफ फोकस में चला जाएगा। सही है। अभी हम योग निद्रा करेंगे 5 से 10 मिनट के बीच में। मैट पर लेट कर करेंगे, पीठ पर लेटेंगे। और आंखें बंद कर लेंगे। नोटिस करें पूरी बॉडी, सर से लेकर वापस पांव तक, सारी की सारी मसल्स लूज एंड रिलैक्स। नाक से लंबा सांस लें और मुंह से एक्सेल करें 2 बार। और एक्सेल करते हुए पूरी बॉडी, पूरा माइंड रिलैक्स कर दें। अभी हम बॉडी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए बॉडी स्टिल रखेंगे।
और एक एक करके बॉडी पार्ट पर ध्यान देंगे और उसे कमांड देंगे रिलैक्स करने के लिए। 4 लिम्स हैं हमारे, एक एक लिम्ब से शुरू करेंगे। सबसे पहले राइट लेग। राइट लेग की हम बैक साइड को नोटिस करेंगे। राइट पैर की बैक साइड नोटिस करें, फील कर सकते हैं तो करें। राइट पैर की हील, राइट पैर का एक्किलेस टेंडन जो हील और काफ के बीच में होता है। राइट लेग का काफ मसल जो जमीन के पास है, बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। राइट नी की बैक साइड, राइट लेग का हैमस्ट्रिंग जो नीचे है जमीन पर, पूरा शांत। राइट हिप, राइट लेग बैक साइड से पूरी रिलैक्स। राइट लेग को ही अब हम ऊपर से देखते हैं। राइट पैर की उंगलियां राइट पैर की ऊपर की साइड, राइट लेग का शिन बोन, राइट लेग का नी, राइट लेग का क्वाड्रिसेप मसल और राइट साइड से पेल्विक। राइट साइड बॉडी की पूरी रिलैक्स, जो भी कामिंग और रिलैक्सिंग वाइब्रेशन फील कर सकते हैं करें। कोई वाइब्रेशन हम ध्यान दें, क्रिएट नहीं करें, जो है बस नोटिस कर रहे हैं। ध्यान लेकर चलते हैं। लेफ्ट पैर की बैक साइड नोटिस करें। लेफ्ट पैर की हील, लेफ्ट एक्किलीज टेंडन, लेफ्ट काफ मसल, लेफ्ट नी की बैक साइड, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग, लेफ्ट हिप, लेफ्ट लेग बैक साइड से ऑब्जर्व करें, रिलैक्स। लेफ्ट लेग को ऊपर से देखेंगे। लेफ्ट लेग की उंगलियां, लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ से, लेफ्ट शिन, लेफ्ट नी ऊपर से, लेफ्ट क्वाड्रिसेप मसल, लेफ्ट पेल्विक, लेफ्ट लेग प्लस राइट लेग, दोनों हमारे नीचे वाले लिम्स प्लस पेल्विक और हिप्स, रिलैक्स। ध्यान लेकर चलेंगे। राइट हैंड की उंगलियों का फिंगर टिप्स, राइट पाम, राइट रिस्ट, राइट फोर आर्म, राइट एल्बो, राइट अपर आर्म, राइट शोल्डर, राइट बाजू पूरी हल्की। ध्यान ले आए। लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप्स को नोटिस करें, जो भी सेंसेशन वाइब्रेशन है। लेफ्ट पाम, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, पूरा रिलैक्स। अब हमने चारों लिम्स, दोनों लेग्स, दोनों बाजुएं रिलैक्स कर दी। ध्यान लेकर चलेंगे स्पेसिफिकली स्पाइन की लोअर बैक राइट साइड। लोअर बैक को नोटिस करें राइट साइड से, मिडल बैक को नोटिस करें, अपर बैक को नोटिस करें राइट साइड से। राइट साइड से रिब गेज जो जमीन पर लग रहा है उसको नोटिस करें। राइट शोल्डर पीछे से पूरा रिलैक्स। ध्यान ले आए
lower back from the left side, middle back, upper back from the left side, लेफ्ट शोल्डर का स्कैपुला, लेफ्ट शोल्डर बैक साइड से पूरा रिलैक्स। ध्यान लेकर जाएं, पिन पॉइंट करें, लोअर बैक एकदम मिडल, टेल बोन से ऊपर, मिडल बैक सेंटर में से, अपर बैक, शोल्डर्स की बैक साइड, गर्दन की बैक साइड, स्पाइन पूरी रिलैक्स। ध्यान लेकर जाएं नेवल पर, नेवल के अंदर सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स सभी रिलैक्स। डायफ्राम, चेस्ट, चेस्ट के अंदर रिब गेज, रिब गेज के अंदर हार्ट एंड लंग्स बिल्कुल शांत। कॉलर बोन, गर्दन ऊपर से बिल्कुल शांत। गर्दन और गर्दन से नीचे सारी बॉडी टोटल रिलैक्सेशन में। ध्यान लेकर चलते हैं हेड की बैक साइड, हेड की टॉप साइड, हेड की टॉप साइड और ब्रेन के बीच की जगह। ब्रेन, आंखें, चेहरे की सारी मसल्स बिल्कुल टोटल रिलैक्सेशन में। पूरी बॉडी हल्की हो जाए, बॉडी के पार्ट्स सारे हल्के हो जाएं। कहीं भी कोई भी स्ट्रेस ना रहे, कोई भी टेंशन ना रहे। बस रिलैक्सेशन और अटेंशन भी रिलैक्सेशन पर। पांच बार लंबा सांस लें और छोड़ें और नोटिस करें नाक से इनहेल विद ओपन माउथ एक्सहेल। और हर एक्सहेल पर सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन निकल जाए और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी रह जाए। फिर से ले लंबा सांस और एक्सहेल करते हुए तन मन शांत कर दें। सारी ओवर थिंकिंग निकाल दें। माइंड के छुपे हुए कॉर्नर में जो भी कोई ख्याल फंसे हुए हैं निकाल दें और रिलैक्स हो जाएं। पामिंग करेंगे, रब करेंगे हाथों को आपस में, गरम करेंगे अच्छे से और थैंक यू करेंगे बॉडी का, थैंक यू करेंगे माइंड का, थैंक यू करेंगे इस लाइफ का और थैंक यू करेंगे अटेंशन का, खुद का। स्ट्रेचिंग कर लेंगे थोड़ी सी, अंगड़ाई ले लें, लेग्स बेंड करके सीधी कर लें, पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, हाथों को शोल्डर्स को स्ट्रेच कर लें और आराम से करवट लेंगे और बैठेंगे। चलिए अभी
बैठेंगे अभी अभी आराम से। हमने योग निद्रा किया। योग निद्रा भी माइंडफुलनेस की तरह है, बट इसको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं समझना। माइंडफुलनेस इज अ वेरी एक्टिव प्रैक्टिस जिसमें हम अटेंटिवली फोकस करते हैं और बैठकर किया जाता है ज़्यादातर माइंडफुलनेस, मतलब लेट कर नहीं किया जाता माइंडफुलनेस। बाकी हम पोजीशंस में कर सकते हैं, खड़े होकर, चलते हुए। लेट कर बॉडी में नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्राउजीनेस आती है बॉडी में, इसलिए योग निद्रा नाम है कि नींद आने के चांसेस रहते हैं और बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है क्योंकि स्पाइन हमारी नीचे शवासन में होती है। जब हम बैठे होते हैं बॉडी वैसी एक्टिव होती है और उसको हम और एक्टिव रखते हैं। तो ऐसा नहीं कभी करना कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम लेट कर करने लगे, तो उसमें होगा नहीं माइंडफुलनेस, उसमें नींद आ जाएगी। सही है। अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे। पहले हम 2 राउंड्स करेंगे। पहले में हम सिर्फ सुनेंगे एक बार मेरी तरफ, ओ। म का साउंड नहीं करेंगे, सिर्फ ओ लेकर जाएंगे और ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। 2 मिनट के लिए करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ज़्यादा अटेंशन दे सकेंगे। आंखें मुश्किल हुआ तो खोल भी सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2 मिनट्स के लिए करेंगे। सांस भरेंगे, ओ, ओ, नेवल पर फोकस रखें। जो भी साउंड के थ्रू वाइब्रेशन जनरेट होती है नेवल पर, ध्यान प्रैक्टिस पर, नेवल पर, पांच बार और, आंखें बंद ही रखें। नोटिस करें एब्डोमेन, चेस्ट शांत और कोई भी फीलिंग या कोई भी सेंसेशन फील कर सकते हैं तो करें। और अब हम ओम का उच्चारण मैक्सिमम लंबा करेंगे। सुनेंगे एक बार ध्यान से। जब हम उच्चारण करेंगे जीभ टंग की पोजीशन हल्की रहेगी, लोअर पैलेट के पास रहेगी, नीचे वाले दांतों के पास ढीली रहेगी। और जब हम उच्चारण करेंगे तो फोकस करेंगे माइंड पर, बॉडी पर। नेवल से शुरू करेंगे अटेंशन देनी। जैसे ही उच्चारण शुरू करेंगे और जैसे ही उच्चारण पूरा होगा तो हेड तक आंखों के सेंटर में नोटिस करेंगे। नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे।
3 मिनट्स तक करेंगे। शुरू करते हैं। वन मिनट और करते रहें। ध्यान नेवल से लेकर आईब्रो सेंटर तक। शांत कर देंगे बॉडी, बिल्कुल स्टिल। और नोटिस करें ओम की वाइब्रेशंस बॉडी में। नेवल में, चेस्ट में, हेड में। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए बॉडी बिल्कुल आराम से। अभी हमने ओम का उच्चारण किया, ये भी बहुत अच्छा मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का ही पार्ट है। जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो हमेशा फोकस लगता ही है और हेल्प मिल जाती है हमें फोकस करने में, क्योंकि हमने एक अपनी पूरी सेंस बोलने के लिए या उच्चारण के लिए लगा दी, तो माइंड फोकस करना आसान हो जाता है। ध्यान जाता नहीं है कहीं, बड़ा अच्छा रहता है उच्चारण करना। कोई भी मंत्र का कर सकते हैं, ओम का भी कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे, जैसे सोहम का भी एक उच्चारण होता है, अलग अलग होते हैं ऐसे। सही है। अभी हम 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के बीच में त्राटक करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तैयारी कर लें, कैंडल रख लेंगे पास में और
और अगर कैंडल नहीं भी है तो हम किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि फोकस करना। दो फुट 2 से 2.5 फुट आगे रख लेंगे, आंखों से 2 से 2.5 फुट डिस्टेंस रहेगा। 3 पार्ट्स विक के टॉप पर खुली आंखों से कंसंट्रेट करेंगे, पलक झपकाएंगे नहीं। इरिटेशन ज्यादा होगी तो झपका लेंगे। पानी निकलेगा आंखों से तो अच्छी बात है, निकलने देना, 1 से 2 मिनट करेंगे। और जब हम आंखें बंद करेंगे तो जो हमें फ्लेम दिख रही है इसे हम बंद आंखों के सामने पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस। आंखें तान के रखेंगे, देखें विक को टॉप साइड। आंखें खुली रहेंगी, देखें कितना कुछ है देखने के लिए। जैसे कलर्स देख सकते हैं, आउटलाइनिंग देख सकते हैं, बेस देख सकते हैं, टेम्परेचर अगर फ्लेम का हॉट फील कर सकते हैं तो वो भी करें। आंखों का अटेंशन विक विक के टॉप पर रहेगा। चलिए धीरे से आंखें बंद कर लें और नोटिस करें बंद आंखों के सामने फ्लेम को। पामिंग करें और ब्लिंक करते हुए फिर आंखें खोल लेंगे। सेकेंड राउंड, अभी हम फ्लेम के मिडल में देखेंगे। फ्लेम का जो भी मिडल पार्ट है देखें वहां पर। शुरू करें पूरी इंटेंशन के साथ, फोकस, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के, बस प्रेजेंट में देखते रहें। प्रेजेंट हमेशा नया नया आता है और हमें बस प्रेजेंट को साथ साथ में फॉलो करना है। आंखें होने दें भारी, नोटिस करें आंखों की भी सेंसेशन को, ब्रेथ की भी सेंसेशन को, और धीरे से आंखें बंद कर लें और नोटिस करें बंद आंखों के सामने फ्लेम को। जो भी नोटिस होता है बस वही करना है। अपने आप जो भी सेंसेशन आ रही है वही देख रहे हैं हम, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पामिंग करें, आंखें खोल लें ब्लिंक करते हुए।
लास्ट राउंड करेंगे फ्लेम के टॉप पर, देखेंगे एज, टॉप एज जो भी नोटिस कर सकते हैं, कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है, कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। बॉडी की सेंसेशंस भी नोटिस रखें, ब्रेथ को भी देख लें। फिर से फोकस टॉप ऑफ द फ्लेम, देखें टेक्सचर, नोटिस करें शेप, नोटिस करें कलर, टोन। और धीरे से वापस आंखें बंद और देखें फ्लेम को बंद आंखों के आगे। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए सभी आराम से, सभी आराम से रिलैक्स। हरिओम। चलिए सही है, सभी आराम से। पहले छोटा सा कोई क्वेश्चन डाउट भी पूछ सकते हैं। एक छोटा सा मैंने क्विज तैयार किया है, आप आप आपको मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें और सिंगल आंसर होगा, वो आपको बस सेलेक्ट करना है। अभी देखते हैं कैसा चलता है। एक सेकेंड। ओके, चलिए अभी एक्चुअली वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्विज बना है लेकिन मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज, जो मैंने एक तो 3 ये पीडीएफ फाइल्स दी हैं, ये आप देखना। और इसमें ना एक सभी वो खोलना प्लीज, माइंडफुलनेस असाइनमेंट जो है इसमें। ये छोटा सा होमवर्क लगा लीजिए आप सभी। इस जो हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको पक्का करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हमने बोला कि प्रैक्टिस है टेंशन फास्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा थोड़ा करना है। सिर्फ 5 मिनट करनी है दिन में, आप कभी भी कर सकते हैं। कोई एक टाइम बांध लेना, 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट। और बस नोट करना है कि 5 मिनट पहले बॉडी कैसी थी और 5 मिनट के बाद बॉडी बॉडी की फीलिंग कैसी है। छोटी सी प्रैक्टिस है, पक्का करना। और फिर छोटी सी एक और प्रैक्टिस, 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग, बेड पर सोने जाते हुए और सुबह उठते ही। ये छोटी सी 5 प्रैक्टिसेस हैं, आपने नेक्स्ट वीक तक करनी है। बिल्कुल आराम से, कुछ ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है। एक ओम का चैंटिंग करनी है 11 बार, जितने बार भी कंफर्टेबल है। बस ध्यान देना है। द पॉइंट इज ओनली अबाउट बीइंग माइंडफुलनेस इन वॉट एवर वी आर डूइंग। योग निद्रा करनी है, खुद से सबने ट्राई करनी है जैसे आज हमने किया।
पक्का सबने खुद से ट्राई करना। ट्राई करेंगे जब हम खुद से, तो हमें पता चलेगा कि क्या हम खुद से कर भी सकते हैं कि नहीं, और खुद से करने में क्या कमी या पेशी हमें मिलती है, या क्या हमें रुकावटें आती हैं खुद से अगर हम योग निद्रा करते हैं, क्योंकि खुद से भी की जा सकती है बिल्कुल हमेशा। तो खुद से भी ट्राई करना 5 मिनट्स। त्राटक करने 2 से 3 मिनट। दो फायदे हैं त्राटक के, आंखों की हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं और माइंडफुलनेस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। और एक माइंडफुलनेस की पीडीएफ जो मैंने दी है वो पढ़ना। और एक ये ना लिंक है, आई थिंक, हाँ, ये लिंक खुला नहीं अभी। एनीवेज चलिए, कोई बात नहीं। ये वाली 5 प्रैक्टिसेस करनी है आपने, और नेक्स्ट वीक या कभी भी मुझे एक्सपीरियंस पक्का बताना कि क्या फ़ायदा मिला, या कुछ फ़ायदा, क्या फ़ायदा नहीं भी मिला, क्योंकि धीरे धीरे मिलता है फ़ायदा, लेकिन माइंड को ट्रेन करना एक आसान काम नहीं है। तो माइंड को जितना हम ट्रेन करेंगे, फोकस करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी टाइम पर हम किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल फोकस पॉइंट ऑफ अटेंशन। सही है, जो हमने बातें की आज वो ऑलमोस्ट उसमें कवर है। योग निद्रा नहीं है पीडीएफ में कवर, बाकी ऑलमोस्ट है कवर। और जो हमने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की थी, वो हमने शिफ्टिंग ऑफ फोकस किया था, कि हमने एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर फोकस किया था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर फोकस किया था। द पॉइंट ऑफ एजेंडा वॉज कि हम 2 पॉइंट पर एक जगह नहीं फोकस कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि हेड पर भी फोकस करें, पैरों पर भी फोकस करें, तो अटेंशन की क्वालिटी कम हो जाएगी। इसीलिए बेस्ट रहता है कि हम एक चीज पर कंसंट्रेट करें, ताकि हम पूरा एफर्ट एफिशिएंसी से उसे कर सकें। जैसे किसी से बात भी करें तो बस समझने की कोशिश करें कि वो बंदा कहना क्या चाहता है। अपनी जजमेंट या अपने आंसर्स हम बाद में भी दे सकते हैं। सही है। आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी। भरत जी, मुझे ये बताइए, क्या हम त्राटक डेली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर ओके। सकते हैं। कोई इसमें नुकसान नहीं है, बट ये देख लेना कि हम ओवर तो नहीं कर रहे हैं। और त्राटक में हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें कैंडल को ही देखना है। हम कोई कागज पर डॉट बनाकर भी उसे देख सकते हैं। जैसे कोई प्लेन पेपर लिया, उस पर डॉट बना दिया ब्लैक पेन से, हम उसको फोकस करें, ऑलमोस्ट सेम सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। बट द पॉइंट इज कि हमने एक जैसे 5 सेंसेस होती है, हमने सेंसेस को बिजी करके काम पर लगा दिया। जैसे आंखों को हमने काम पर लगा दिया, बॉडी सेंसेशंस को हमने काम पर लगा दिया। दोनों फायदे हैं, आंखों के लिए भी, माइंड के लिए भी। तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू। सही है। और कुछ कोई कुछ पूछना चाहेगा? और कि कैसी लग रही है ये प्रैक्टिस? आप इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सा माइंडफुलनेस में? ट्राई किया क्या आप लोगों ने खुद से? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। मनी जी, हरजीत जी, शैली भाभी, किया क्या आपने कुछ कभी ट्राई खुद से? सर, हाँ जी। त्राटक में थोड़ी सी 20 सेकंड्स तक ही मेरा आंख खुलती है, उससे बाद जलन होने लग जाती है बहुत तेज। हाँ हाँ, बंद कर लेनी है फिर। जलन, आपका तो बहुत लंबा होता है, मतलब। जलन देखिए, सब आपके स्पेक्स भी लगे हुए हैं, तो इसमें इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। ओके ओके स्पेक्स अगर पहनकर करोगे तो इजी रहेगा हमेशा करना। स्पेक्स उतार कर करोगे तो बहुत जल्दी जलन होगी। ओके। तो लेकिन अगर आंखों की हेल्थ बढ़ानी है तो बिना चश्मों के। लेकिन अगर ठीक है माइंडफुलनेस ही करना है, सिर्फ फोकस ही करना पॉइंट है, तो हम चश्मे पहन के भी कर सकते हैं। सर, एक आपने 5 जो भी बताया डेली करने चाहिए हमें, उसमें 5 मिनट की आपने माइंडफुलनेस बताई है ना? हाँ जी, तो हाँ वो जी। वो कहाँ से करें, खुद ही से? देखिए, आप हमें बस ये देखना है कि फोकस क्या कितना कुछ है करने के लिए। सबसे पहले तो ब्रेथ है। अगर कुछ भी नहीं है फोकस करने को मिल रहा, तो ब्रेथ पर फोकस कर लिया, क्योंकि ब्रेथ तो है ही हमेशा हमेशा हमारे पास, कभी भी तो फोकस कर करना सकते हैं। करना बॉडी पे ही है ना, इधर उधर? इधर उधर कर ले। द पॉइंट इज कि जैसे मैंने सामने देखने लग जाऊं, और बस हाँ मैं हाँ। देखूं कि क्या पड़ा है। क्या पड़ा है सामने, गिलास पड़ा है, गिलास की क्या आउटलाइनिंग है, गिलास का क्या डिजाइन है। इट्स जस्ट कि
ऑब्जर्विंग व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ क्योंकि हम चीजें इग्नोर कर देते हैं देखने के बावजूद भी। अगर मैंने देखा है कि मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप की ये आउटलाइनिंग है, लैपटॉप ब्लैक कलर का है, लैपटॉप के में कैमरा भी लगा हुआ है, तो इट्स जस्ट अबाउट रिकन्फर्मिंग माई सेल्फ की जो मैं देख रहा हूँ और वो मैं अंदर से बोल भी रहा हूँ, ताकि जैसे होता था ना कि हम कहते थे लिख लिख कर याद करो या पढ़ पढ़ के अच्छी तरह से याद होता है, तो हमें फोकस रखना है जो भी हम कर रहे हैं। सैर भी कर सकते हैं, उसमें भी फोकस, नंगे पैर घास पे चल रहे हैं तो पैरों पर फोकस, क्या सेंसेशन आ रही है, तो चलते हुए भी माइंडफुलनेस कर सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हैं अगर हम, तो बस ये देखा कि क्या चल रहा है बॉडी में, कैसा टेम्परेचर लग रहा है बॉडी का, क्या हम डर के मारे तो नहीं ठंडे पानी से नहा रहे, कि क्या मुझे आदत तो नहीं पड़ी ठंडे पानी से नहाने की। तो जब हम इस चीज को भी देखेंगे, हम अपनी आदतें भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते ही नहीं है कि नहीं यार पानी तो गर्म ही करना है तभी नहाना है, हम ट्राई नहीं करते कभी ठंडे से नहाने की, और फिर हम नहाते ही नहीं है कभी, क्योंकि माइंडफुलनेस से कभी देखा ही नहीं होता कि कुछ होता तो है नहीं है, ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई नहीं करते। तो इट्स जस्ट अबाउट की पॉजिंग फॉर अ मोमेंट एंड देन थिंक। कुछ भी हमें इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि वो रैपिड फायर राउंड चल रहा है। हमें आराम से रुक कर हम फिर डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन मिलता है। जैसे स्पीकिंग है ना, अब मुझे स्पीकिंग, अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं भूल भी सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा बीच में, मैं बीच में याद करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक थे, तो फिर मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ। नहीं तो जैसे मैंने शुरू शुरू में किया था, तो मैं कैमरे के सामने बड़ा ना डरता होता था कि कैमरे के आगे जाना है, क्या बोलूंगा, मैं भूल जाऊंगा। तो अब क्या होता था कि क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर रहा था कि मैंने बोलना क्या है, लेकिन सब फोकस करने की बोलना क्या है, टॉपिक क्या है मेरा बोलने का, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है उसको मैनेज करना। तो अब कैमरे के आगे हो या पब्लिक के आगे, तो फिर वो डर कम लगने लग जाता है। तो ये हम किसी भी वे में अप्लाई कर सकते हैं कि हम क्या फोकस करना चाहते हैं और क्या हम डर तो नहीं रहे हैं उस पर फोकस करने से। इमोशंस दिखते हैं कई बार हमें, लेकिन भागना नहीं है। इमोशन से अगर हम भागेंगे तो वो चीज हल नहीं होती, वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। हमें इमोशन को देखना है, लेकिन उस पर हमने लेबल नहीं लगाना कि ये अच्छा अच्छा थॉट है या ये बुरा थॉट है, ऐसे नहीं करना। बस देखना है और लेट इट गो, इफ इट कम्स लेट इट, इफ इट गोज लेट इट। तो ज्यादा उलझनों में नहीं पड़ना, सही है। और ये जो नोट्स दिया ना, ये बार बार अगर कभी भी ऐसा लगता है तो हमेशा हम बार बार पढ़ सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आता है। मैं दो चार और भी नोट्स शेयर करूंगा जो पिछली बार के थे, वो थे फोकस ऑफ अटेंशन के ऊपर, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। और मुझे फीडबैक पक्का देता रहना ताकि मैं ये कंटिन्यू रखूं। ताकि मैं भी सीख रहा हूँ इसी बहाने, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सर पीडीएफ है जो व्हाट्सएप पे भेजा आपने? व्हाट्सएप पर अभी मैंने भेजा नहीं है, अभी ये 3 हैं जो इस चैट में हैं, ये 3 में ही मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये गो थ्रू करना, और सही है, बस बाकी मेरी तारीफ कर देना सभी। और सही है, चलिए हम कल करते हैं फिर सेम। और कोई भी क्वेश्चन डाउट, ठीक है, पूछना है, मन में नहीं रखना। कोई भी छोटा डाउट छोटा नहीं होता। कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे ही ना पता हो, जैसे आज मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि माइंडफुलनेस और योग निद्रा में क्या फर्क हो सकता है, तो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया फिर कि दोनों में हम अटेंशन दे रहे हैं, तो फर्क क्या है दोनों में। फर्क बस इतना है कि जब हम पीठ पर लेटते हैं तो बॉडी रिलैक्स होगी होगी, और बॉडी जब रिलैक्स होगी होगी तो वो नींद की तरफ जाएगी जाएगी। तो जब हम अटेंटिव रहते हैं तो नींद आने के चांसेस कम होते हैं। तो मतलब ये पढ़ा, लेकिन अगर सोचा है तो ये इतना बेस क्वेश्चन भी नहीं है, या इतने कोई लोग पूछेंगे भी नहीं। बट कुछ भी आता है तो पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सही है, चलिए कल मिलेंगे फिर। सर ये जो नोट्स है आपके, ये आपके कोई रीड एआई पर आ रहे हैं ना आपके? मीटिंग नोट्स टू द आपने डबल क्लिक किया उसको? हाँ मैंने किया, तो इट्स ओपनिंग अनदर विंडो। ओके, तो जो आ रहा है ना ये www.read.ai, वेब ब्राउजर पे खुला है।
हाँ, वेब ब्राउजर पे ही खोला है। जूम पे खोलने से मतलब वो उसके उस पे खोलने से तो शायद डायरेक्ट आ जाएंगे जो जिसमें हम हैं। हाँ, मैं अभी व्हाट्सएप ही कर दूंगा तो आपको। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ और ओपन कर रहा है एंड इट इज रिक्वायरिंग द कुकी सेटिंग्स और सब वो हाँ हाँ कुछ हाँ, कई बार है वो ना। वेब हाँ पेज पे चला जाता है। इट्स ओके, मैं ये अभी विद इन हाफ एन आवर ये मैं कर देता हूँ हाँ, सॉल्व। नो इश्यूज। सो चलो थैंक यू सर, ठीक है इट जी। वाज अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू रूपाली जी। ओके ओके थैंक यू रीत जी। सर। ओके जी। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। ओके सर। ओके शैली भाभी। ओके मनी जी। बाय बाय। बाय बाय। प्रसाद, हेलो प्रसाद भाई, यू दे? Sorry, sorry, I was just listening. I'll sign off, okay? It's okay. If did you came for the session? I did first quarter and I tried again because I had some family things to attend, but I'll check out again next week. Yeah. I will share the video also of this session. Oh, please, yeah, please, You please. I just will it will watch. Yeah. definitely help it. The topic is mindfulness, and I will share the PDFs also in the group. Do check Yeah. out the. It's very small PDFs. Okay, okay. I'll Uh, have a look. Thank you. okay, Vashad. Bye bye. Okay. Okay.